recitation of Holy Quran. Dear Ali, please, it is over to you for recitation of Holy Quran. Ji Ali, it is over to you. Okay, sir. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Over to you, sir. Jazakallah. Thank you very much, Ali. Dear participant, as you know, today we are here to learn about the withholding taxes. Withholding taxes is a global phenomenon, and in Pakistan, it is the major source of revenue because Federal Board of Revenue is collecting major portion of their collection from withholding taxes. As I told, it's a worldwide phenomena. In UK, it is known as pay as you earn, and it is abbreviated as PAYE. In Australia, it is pay as you go, and in India, it is known as tax deducted at source. And in some other countries, it is known as tax retention. In our country, withholding tax has profound importance. Catering for that importance, we are holding this session. A large number of provisions in the Income Tax Ordinance 2001 are available for the withholding taxes, ranging from section 148 to 169, and then from 231 to section 236Y. To cover these all provisions, we have a great resource with us, a very learned person, an exceptional tax practitioner, fellow member of Institute of Chartered Accountants of Pakistan, Sir Nadeem Butt. For his introduction, he is also fellow member of PEFA and fellow CFMA. He is running a chartered accountant firm under the name and style of Nadeem & Co. Chartered Accountants in Lahore. He is chairman of Lahore Tax Bar Association Tax Academy. The point for note is he is the chairman for continuous fifth term of LTBA Tax Academy. Furthermore, he was member of ICAP Publication Committee for the period of 2017 to 18 and member of NRC ICAP Practice Board Committee for the period of 2018 to 2020. He is a lifetime member of Lahore Tax Bar Association and Multan Tax Bar Association. He is teaching for 25 years, and Alhamdulillah, I am amongst his students. Sir, for further to cover this topic, I will request you please start your presentation, and it's over to you, Sir Nadeem Butt Sahib. जी थैंक यू वेरी मच जी। जैसा कि उन्होंने कहा कि विद होल्डिंग टैक्सेस के ऊपर आज की जो सेमिनार हमने जो रखा हुआ है उसमें हमने कोशिश की है कि जी इसमें 50 क्वेश्चन आंसर जो है ना वो डिफरेंट जो इसमें रखें ताकि लोगों को मैक्सिमम जो नॉलेज है वो विद होल्डिंग टैक्सेस को हम शेयर कर सकें। तो वन बाय वन करके मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह ताला, फिर बाद में इसके क्वेश्चन आंसर सेक्शन जो है उसको रख लेंगे हम। तो सर कहीं अपनी स्क्रीन शेयर कर लीजिएगा दोबारा। थैंक यू जी। स्क्रीन देखें जी, शेयर हुई हुई है, चेक कीजिएगा। सर योर स्क्रीन इज नॉट शेयर, प्लीज शेयर योर स्क्रीन सर। स्क्रीन शेयर नहीं हुई अभी? नो सर, नो सर। मैं दोबारा करता हूँ जी, देखें। अब देखिएगा जी, आ रही है क्या? सर होने जा रही है, आ गई है सर। योर स्क्रीन इज अवेलेबल सर। जी सर, जी ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। जी ये
देखिए सबसे पहले जो है वो बात हो रही है कि एडवांस टैक्स बाय द टैक्स पेयर है, वो 147 और 147A है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो इम्पोर्ट्स का है, जो कि फेडरल गवर्नमेंट आपको पता है ये टैक्सेस इनकम टैक्स से कलेक्ट करती है। फिर 149 से लेके 158 तक है। उसके बाद 159 से लेके 169 है। ये मुख्तलिफ सेक्शन है जिनमें विद होल्डिंग टैक्सेस आया या तो आप पे कर रहे होते हैं या वो कलेक्ट कर रहे होते हैं एट सोर्स। इसी तरह ट्रांजिशनल एडवांस टैक्स प्रोविजन हैं जो 231A से लेके 236Y तक जाती है। सो मैंने इनको क्या किया कि इन शॉर्ट करके 50 क्वेश्चन आंसर सेशन में मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया है। कोशिश की है कि तमाम एंगल्स को कवर करें। बाकी जब आपके क्वेश्चन आंसर होंगे तो इंशाल्लाह ताला इसके बाद सेशन के उसको भी देख लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जी आपके सामने है वो हु विल डिडक्ट विद होल्डिंग इनकम टैक्स एट सोर्स। जी सबसे पहले आप देखेंगे कि उस सेक्शन में अगर वो प्रिस्क्राइब पर्सन कह रहा है तो प्रिस्क्राइब पर्सन की डेफिनेशन उस सेक्शन में गिवन होगी या एज स्पेसिफाइड इन द रेलेवेंट सेक्शन है। जैसे 149 सेक्शन है तो उसमें वो कहता है कि वो पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट द टैक्स। अब वहां पे प्रिस्क्राइब पर्सन नहीं है, वहां पे उसने कह दिया कि जो पर्सन पे करेगा सैलरी एज ए एम्प्लॉयर के तौर पे तो वो विद होल्डिंग एजेंट बन जाएगा। अब इसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें यह है कि अमूमन लोग क्या करते हैं कि जो पेएबल और रिसीवेबल होता है किसी एक पार्टी फर्ज करें ए से मैंने पैसे लेने हैं और बी को देने हैं तो वो डायरेक्टली उसकी पेमेंट करवा देते हैं और फिर वो कहते हैं जी ये पेमेंट नहीं हुई, लेकिन इन द आईज ऑफ लॉ उसको भी पेमेंट ही समझा जाएगा और विद होल्डिंग टैक्स अकॉर्डिंगली काटा जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, इसमें विद होल्डिंग एजेंट के लिए जो वर्ड यूज हुआ है 153 में, प्रीसीडिंग टैक्स ईयर में अगर इंडिविजुअल और एओपी की टर्नओवर 100 मिलियन से ज्यादा होगी, ठीक है, तो फिर वो विद होल्डिंग एजेंट इसमें बन जाएगा। और उसमें जो वर्ड है एनी ऑफ द प्रीसीडिंग टैक्स ईयर्स है, इस पे मैं डिटेल में फिर आपसे बाद में बात करूंगा। नंबर 2, एट विच अमाउंट विद होल्डिंग इनकम टैक्स शैल बी डिडक्टेड। अब अमाउंट कौन सी होगी जनाब? ग्रॉस अमाउंट होगी अगर सेल टैक्स एप्लीकेबल होगा, जहां सेल टैक्स है चाहे वो सर्विसेज वाला है, गुड्स वाला है या एफईडी है, व्हाटएवर जो एप्लीकेबल है वो आपने चार्ज करना है और ऐड करके, मसलन अगर मैं 1 लाख रुपए की परचेज करता हूं और 17% सेल टैक्स है तो जो इनकम टैक्स काटा जाएगा वो 1,17,000 पे काटा जाएगा जब पेमेंट की जाएगी। नंबर 3, at what rate withholding income tax shall be deducted on various payments made under the income tax ordinance 2001। अब मुझे रेट कहां से पता लगेगा जी? वैसे तो मोस्ट जो वेल नोन है वो फर्स्ट स्केड्यूल ही आपको पता है, लेकिन इसके अलावा रेलिवेंट सेक्शन भी हो सकता है या रेलिवेंट क्लॉज ऑफ सेकंड स्केड्यूल हो सकता है या एल्सवेयर स्टेटेड जैसे डबल टैक्सेशन ट्रीटी एग्रीमेंट भी हो सकता है और रूल्स भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं। जैसे एक एक्सेप्शन में आपको बता देता हूं कि जैसे सेक्शन 149 है वो ये कहता है कि डायरेक्टर मीटिंग फी जो होगी उस पर 20% जो टैक्स है वो काटा जाएगा स्टेट बेसिस पे जो भी ड्यूरिंग दी टैक्स ईयर पेमेंट होगी। अब वो आपको फर्स्ट स्केड्यूल नहीं बताएगा, वो रेलिवेंट सेक्शन बता रहा है उसके मुताबिक है। इसलिए सारी चीजों को कंसिडर करना पड़ेगा व्हाइल विदहोल्डिंग टैक्स ऑन पेमेंट्स अगेंस्ट गुड्स सर्विसेज और कॉन्ट्रैक्ट्स या जो भी चीज आप खरीद रहे होंगे। नंबर 4, when withholding income tax shall not be deducted on various payments made during the income tax under the income tax ordinance 2000। कब टैक्स नहीं काटा जाएगा? नंबर 1, if payment has not been made during the tax year, अगर आपने पेमेंट की नहीं तो तब भी टैक्स नहीं काटा जाएगा। जितने भी विदहोल्डिंग टैक्सेस है इनकम टैक्स के वो पेमेंट बेस पे है, पेमेंट होगी तो टैक्स आएगा, अदरवाइज टैक्स विदहोल्ड नहीं होगा। दूसरा, अगर कोई रेलिवेंट आपका जो एग्जम्पशन है सेक्शन में दिया हुआ है या क्लॉज है या सेकंड स्केड्यूल है या एसआरओ अगर कोई इंटैक्ट है, अब 586 एसआरओ तो अब नहीं रहा, पहले वो था पिछले सालों में, अब वो कन्वर्ट हो गया, आगे ये भी क्वेश्चन आएगा। एसआरओ 586 की जगह पे 46AA सेकंड शेड्यूल पार्ट 4 का क्लॉज आ गया है। नंबर 5, टाइम ऑफ डिडक्शन ऑफ विदहोल्डिंग टैक्स ऑन वेरियस पेमेंट्स मेड अंडर द इनकम टैक्स, किस वक्त जो है टैक्स वो काटा जाएगा। अब सबसे पहले दो चीजें हैं, अगर तो आप 151 में प्रॉफिट ले रहे हैं आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाए या कि कोई भी और केस में पेमेंट जब होगी तब टैक्स आएगा। लेकिन इसकी एक्सेप्शन दो मैंने आपको कोट कर दी है, 154 सब सेक्शन 3A एंड 154 सब सेक्शन 3C। अब 3A क्या कहता है, अगर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में अगर आप कोई एक्सपोर्ट करते हैं तो जैसे ही आप उस जोन से बाहर निकलेंगे
तो विद होल्डिंग टैक्स उसी वक्त ही उस पर आपके एक्सपोर्ट पे लग जाएगा। इसी तरह अगर आप 154(3)(c) में हैं, किसी ऐसी कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं जहां बैंकिंग चैनल नहीं है, तो जैसा ही आप पाकिस्तान की टेरिटरी को क्रॉस करेंगे, उसको करने लगेंगे, बल्कि जब तो वो कस्टम वाले उसी वक्त आपसे टैक्स जो है कलेक्ट कर लेंगे। आल्दो के दोनों केसेस में, ये जो 2 और 3 नंबर है, इनमें अभी पेमेंट नहीं आई और चीजें अभी तक नहीं पहुंची, लेकिन फिर भी इस पे विद होल्डिंग जो टैक्स है वो आ जाएगा। तो ये एक्सेप्शन है बेसिकली कि पेमेंट के बगैर भी विद होल्डिंग टैक्स इन दोनों सेक्शन सब सेक्शन में लगा हुआ है। 6 व्हेन विद होल्डिंग इनकम टैक्स डिडक्टेड शैल बी डिपॉजिट। अब ये जमा कब करवाना जी? इसके लिए दो चीजें हैं। अगर फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट पेमेंट कर रही है, यानी उन्होंने कुछ खरीदा है और वो पेमेंट कर रहे हैं, तो सेम डेट में इसको जमा कराना है। इसके अलावा अगर कोई और केस होगा तो विद इन 7 days है फ्रॉम द एंड ऑफ द वीक इन विच पेमेंट वाज मेड। मसलन आज अगर फर्ज कर आज फ्राइडे है, आज अगर मैं पेमेंट करता हूं तो ये वीकेंड होगा संडे को रात 12 बजे तक। अगला जो कमिंग संडे होगा वहां रात 12 बजे तक मैं पेमेंट कर सकता हूं विद होल्डिंग टैक्स काटने की। इसका मतलब ये हुआ कि फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अलावा जितने लोग हैं उनको कम से कम 8 दिन अगर वो संडे को टैक्स काटते हैं, और मैक्सिमम 14 डेज दिए जाएंगे कि जो टैक्स उन्होंने काटा है वो एफबीआर के बिहाफ पे जो उन्होंने एज ए विद होल्डिंग जो टैक्स काटा है वो जमा करवा दें। अब 7th क्वेश्चन जी, क्या होगा, व्हाट विल बी द कोर्स ऑफ एक्शन इफ विद होल्डिंग इनकम टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड बट नॉट डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय द पेयर। और उसके दूसरी तरफ क्या है, एंड केसेस वेयर विद होल्डिंग इनकम टैक्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड बट डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय द पेयर। अब इसकी बात ये हो रही है, फर्ज करें आपने किसी ऐसे विद होल्डिंग एजेंट को सप्लाई की है जिसने टैक्स काटना था लेकिन उसने टैक्स नहीं काटा, तो फिर ऑब्वियसली आपको टैक्स जो है अगर वो जमा नहीं करवाता तो आपको अल्टीमेटली जमा करवाना पड़ेगा 162 सेक्शन में। दूसरी बात यह है कि अगर आपका टैक्स इनएडवर्टेंटली कट गया है, रिक्वायर्ड नहीं था, तो उसका क्रेडिट आप ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, ये जवाब इसका जो मैंने आपको दे दिया। 8 क्या जी, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एग्जम्पशन लिमिट्स फॉर विद होल्डिंग इनकम टैक्स पर्पसेस। के लिए एग्जम्पशंस किधर किधर है? द सेम आर गिवन इन द रेलेवेंट, या तो सेक्शन में है या एसआरओ में है या फर्स्ट स्केड्यूल में है या सेकंड स्केड्यूल ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में, वेयर एप्लीकेबल। मैंने बुक ऑलरेडी तमाम लोगों को दी हुई है, अगर किसी को बुक्स वो नहीं मिली तो वो आप वो बुक मुझसे ईमेल अपनी देके पिफा के थ्रू या डायरेक्टली मुझे देके वो किताबें आप मुझसे ले सकते हैं। उसमें हमने ये चार्ट विद होल्डिंग के सारे बनाए हुए हैं, वहां से आप काफी बेनिफिट इसका उठा सकते हैं। 9 नंबर दी, इज देयर एनी एडजस्टमेंट अलाउड अगेंस्ट विद होल्डिंग इनकम टैक्स। क्या मैं विद होल्डिंग टैक्स को कम कर सकता हूं जो कि मैंने दूसरों के बिहाफ पे काटना है? इसमें एक तो रेलिवेंट सेक्शन आपको बताएगा, जैसे 149 सेक्शन ये कहता है कि अगर आपने कोई गाड़ी खरीदी है, कैश विड्रॉल है या टैक्स क्रेडिट है या रिडक्शन आपके पास अवेलेबल है, तो वो एम्प्लॉयर को आप चीज वो एविडेंस दिखा के टैक्स कम कटवा सकते हैं। यानी अगर फर्ज करें मैंने 1.5 लाख रुपए टैक्स देना है 1 साल में और गाड़ी पे मैं 50,000 दे आया हूं, तो वो मैं अपने एम्प्लॉयर को दिखा के जो मेरे नाम पे गाड़ी होगी वो 50,000 माइनस करके बाकी 1 लाख मैं कटवा लूंगा। इसी तरह 236C है, उसका सब सेक्शन 3 है। अगर आप 4 साल के बाद प्रॉपर्टी ऑब्वियसली आप बेचते हैं तो वो 0% उस पर वो टैक्स लगेगा। नंबर 10, टू होम विद होल्डिंग टैक्स इज टू बी डिडक्टेड। किसका टैक्स जो है काटना है? अब ऑब्वियसली जिसको पेमेंट हो रही है या जिस उसी का टैक्स होगा। जैसे सैलरी में एम्प्लॉइज है, अगर आप सप्लायर आपको चीजें दे रहे हैं उनका है तो वो सप्लायर्स का टैक्स है। इसी तरह इंपोर्ट है तो वो कलेक्टर वो कस्टम काटेगा और वो लेगा आपसे, और वो होता किसका है? वो टैक्स पेयर जो इंपोर्टर होता है। 11 नंबर जी, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ विथहोल्डिंग इनकम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम रेसिपिएंट पॉइंट ऑफ व्यू अंडर द इनकम टैक्स लॉ। अब ऑब्वियसली उसके लिए 3-4 ऑप्शन है, आपको पता है। या तो वो एडजस्टेबल है, इंक्लूडिंग मिनिमम टैक्स है, इसमें क्रेडिट नॉट अलाउड भी शामिल होता है, और कवर्ड अंडर फाइनल टैक्स रिजीम। सो इट विल डिपेंड फ्रॉम, अब अभी इस वक्त तो आपको पता है काफी केसेस मिनिमम टैक्स रिजीम में शिफ्ट हो गया, जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स वाले हैं, कमर्शियल इंपोर्टर हैं, सप्लाईज है, तो काफी चीजें अब आपका वो जो प्रॉफिट ऑन डेट है ये काफी चीजें आपकी मिनिमम टैक्स रिजीम के अंदर चली गई है। 12 जी, क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स विल बी कंप्यूटेड फॉर विथहोल्डिंग टैक्स पर्पसेस इन केस ऑफ इंपोर्ट्स। अब इंपोर्ट्स में 1-2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपने हायर ऑफ द डिक्लेयर्ड और असेस वैल्यू ऑफ इंपोर्ट आपने लेनी है, जो कि जीडीपी उन्होंने दिया होता है। आपको पता है डिक्लेयर्ड वैल्यू अलग है और असेस वैल्यू अलग होती है, और असेस इन दोनों में से जो हायर होगा उस पर कस्टम ड्यूटी ऐड की जाएगी, फिर उसमें सेल टैक्स ऐड किया जाएगा। कस्टम ड्यूटी ऐड करके फर्ज करें 1 लाख रुपए की इंपोर्ट है, उस पर कस्टम ड्यूटी फर्ज कर ले आप 50% है, अज्यूम कर रहा हूं मैं,
तो 1.5 लाख हो गया। 1.5 लाख के ऊपर फिर 17% जो एप्लीकेबल है वो आएगा। इसके अलावा अगर कोई नॉन एडजस्टेबल टैक्सेस हैं या ड्यूटीज हैं जो कि रिफंडेबल, नॉन एडजस्टेबल और नॉन रिफंडेबल है, वो भी कॉस्ट का हिस्सा बन जाती है। सो ये वाला इंपोर्ट से रिलेटेड था जी। नेक्स्ट है जी, आपने जो विदहोल्डिंग स्टेटमेंट है और एनुअल विदहोल्डिंग स्टेटमेंट्स जो हैं वो कब जो है वो उनको फाइल करना होता है। जो तो क्वार्टरली है वो आपको पता है, हर क्वार्टर के 20 डेज के अंदर, मतलब अगर पहला क्वार्टर है जुलाई टू सितंबर तो 20 अक्टूबर तक, इसी तरह अक्टूबर टू दिसंबर 20 जनवरी, इसी तरह जनवरी टू मार्च 20 अप्रैल, और फिर अप्रैल टू जून फिर 20 जुलाई तक आपको विद इन 20 डेज ऑफ द फॉलोइंग जो आपका होगा क्वार्टरली क्वार्टर, उसके अंदर आपने जमा कराना है, उसको फाइल करना बेसिकली। और एनुअल जो है विद इन 1 मंथ है। अगर आपका ईयर एंड सितंबर है तो 31 अक्टूबर, जून है तो 31 जुलाई, 1 महीना आपको मिलेगा एनुअल विदहोल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करने के लिए। लेकिन एनुअल विदहोल्डिंग स्टेटमेंट सिर्फ सैलरी की है, वो आपकी गुड्स और सर्विस की नहीं होती है। एक्टिव टैक्स पेयर कौन होगा जी इनकम टैक्स लॉ में? आपको पता होगा कि इनकम टैक्स लॉ का एटीएल लिस्ट अलग है और सेल टैक्स की एटीएल की लिस्ट अलग है। ये जरूरी नहीं कि जो बंदा इनकम टैक्स में एटीएल में होगा वो सेल टैक्स में भी होगा। तो अब इसके लिए क्या है, या तो आप पाकिस्तान की लिस्ट में हो एटीएल में, या आप आजाद जम्मू कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान की काउंसिल बोर्ड की रेवेन्यू की जो लिस्ट है, तीनों में से किसी एक में भी आप आ गए तो आपको एक्टिव टैक्स पेयर ही समझा जाएगा अंडर द इनकम टैक्स लॉ। 15 what will be the course of action available to a taxpayer if withholding income tax demanded under section 161(2)(05) has been created by the tax department? तो क्या होगा जी, या तो आप उसको एक्सेप्ट कर लें और डिमांड को पेमेंट कर दें, या उसकी कोई एडजस्टमेंट ले लें अगर आपके पीछे रिफंड पड़े हुए हैं, या आप विदहोल्डिंग टैक्स को रिजेक्ट कर दें टोटली या पार्शली, और एक्सेप्ट और रिजेक्ट करके आप अपील कर लें, या पार्टली एक्सेप्ट करके पार्टली रिजेक्ट कर दें और उसके अगेंस्ट आप अपील फाइल कर सकते हैं। और स्टे का भी आपको फैसिलिटी इसमें अवेलेबल होती है जी, अगर आप, लेकिन वो अप्लाई करके लेना पड़ेगा। 16 जी, व्हाट आर द इंप्लीकेशंस ऑफ फेलियर टू विदहोल्डिंग टैक्स अंडर द इनकम टैक्स लॉ? पहला, आपसे 161 में आपसे और रेसिपिएंट से अगर पेयर पे नहीं करता तो 162 में उसे रिकवरी जी। पेनल्टी अंडर सेक्शन 182 जो है वो आपको लग सकती है। डिफॉल्ट सरचार्ज 205 सेक्शन में आपको पता, आगे इस पे क्वेश्चन भी आएगा कि क्या क्या रेट होगा। और फिर अल्टीमेटली आप फिर भी अगर विदहोल्डिंग टैक्स जमा नहीं करवाते तो प्रोसिक्यूशन जो 191, 193, 195, 196 में आपके अगेंस्ट हो सकती है। वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ वो कितनी है। असेसमेंट जी जनरली किस तरह की होती है? 2 तरह की। एक वो टैक्स है जो आपने अपना जमा कराना होता है, जो टोटल ऑडिट में केसेस होते हैं, और एक दूसरों का जो टैक्स आपने देना होता है वो विदहोल्डिंग टैक्स, जिसे 161(2)(05) हम कहते हैं। इन द आईज ऑफ लॉ ये जो दूसरों का टैक्स होता है ये असेसमेंट ऑर्डर नहीं है, ये लायबिलिटी है जो आपने पे करनी होती है। अच्छा जी, पेनल्टी क्या है जी? लेट फाइलिंग और विदहोल्डिंग, जो क्वार्टरली एनुअल विदहोल्डिंग स्टेटमेंट है, तो उन्होंने कहा अगर आप टैक्स पूरा जमा करवा देते हैं और उसके 90 दिन के अंदर आप विदहोल्डिंग स्टेटमेंट अगर फाइल कर देते हैं तो 5,000 रुपए है। लेकिन अगर आप टैक्स जमा नहीं करवाते या अदरवाइज है तो फिर 2,500 रुपए पर डे है और मिनिमम पेनल्टी 10,000 रुपीज होगा। 19 नंबर जी, प्रैक्टिकल प्रोसीजर क्या रिकवरी करने का विदहोल्डिंग टैक्स फ्रॉम द टैक्स पेयर? शो काज नोटिस आएगा, जारी बात है, उसके बाद वो 137 का आपको नोटिस है, उसकी पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। अब अंडर द लॉ कलेक्शन एंड रिकवरी के मोड्स कौन कौन से हैं जो टैक्स डिपार्टमेंट यूज कर सकता है? सबसे पहले 138 है जी, रिकवरी ऑफ टैक्स आउट ऑफ प्रॉपर्टी एंड थ्रू रेस्ट ऑफ द टैक्स पेयर। नंबर 2 139 कलेक्शन ऑफ टैक्स इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनीज एंड एओपीज, जो कि डायरेक्टर्स जो 10% होल्डिंग कम से कम जिसके पास हो और एओपी में मेंबरान से रिकवरी की जा सकती है, और बल्कि की है उन्होंने जहां जहां डिफॉल्ट किया है कंपनी है या एओपी ने। 140 सेक्शन है जी, जो कहता है कि आप अगर कोई लिक्विडेटर या होल्डिंग मनी आपके बिहार किसी के पास पैसे हैं आपके, उनसे भी टैक्स ऑफिस रिकवरी कर सकता है। और रिकवरी ऑफ टैक्स बाय नॉन रेजिडेंट मेंबर ऑफ एन एओपी है, अगर नॉन रेजिडेंट है तो आप रेजिडेंट की जो मेंबर है उससे रिकवरी कर सकता है एफबीआर जी। प्रेजेंट मैक्सिमम नॉन जो थ्रेश होल्ड है लिमिट अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज क्या है? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। आप फाइनेंस एक्ट 2018 जो टैक्स ईयर 2019 में अप्लाई है, वो गुड्स के अगेंस्ट अगर आप 75,000 पे, जो पहले 25,000 था वो 75 हो गया है, जो सर्विसेज पे 10,000 था वो 30,000 हो गया है,
और अगर आप इसके अंदर रह के पेमेंट करेंगे या बराबर करेंगे तो फिर आपको विद होल्डिंग टैक्स नहीं काटना होगा। प्लस ये मैं बताता चलूं कि ये अमेंडमेंट्स अब 58 का सारों नहीं रहा, अब ये अमेंडमेंट्स 153 सेक्शन के अंदर की गई हैं। वहां आप जब उसका पहला ही सेक्शन पढ़ेंगे तो उस पहला या दूसरे के अंदर ही उन्होंने वहां लिख दिया है कि 75,000 और 30,000 के अंदर अगर पेमेंट होगी गुड्स और सर्विसेज की तो टैक्स नहीं काटना। 22 है जी, सेल ऑफ गुड्स सर्विसेज और कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया। गुड्स आपको पता है क्रेडिट पे बेचे या कैश पे बेचे, और चाहे कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बेचे, वर्बल हो, वो सेल ऑफ गुड्स है। सर्विसेज उसमें स्पेसिफाइड है, अकाउंटेंट्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, इंटीरियर डेकोरेटर्स हैं एंड लॉयर्स हैं, लेकिन एम्प्लॉई इसमें शामिल नहीं है क्योंकि वो सैलरी के अंदर चला जाता है। कॉन्ट्रैक्ट्स में इसमें डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जी, आप मैकेनिकल, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, लेबर, कैरेज कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन इसमें गुड्स और सर्विसेज शामिल नहीं होती। ये इंक्लूड्स की बात हो रही है, इसका मतलब है ये काफी डिटेल में कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन होगी जो कि कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर फॉल करेगा, लेकिन गुड्स और सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट कर लेने से सिर्फ वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। हाँ जी, रेट अब जो है वो सैलरी के अगेंस्ट जो है वो क्या होगा एप्लीकेबल, वो उसके बारे में 6 लाख रुपए तक इस वक्त 0% टैक्स है और मैक्सिमम 35% टैक्स होगा अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 75 मिलियन से ऊपर जाती है। और 20% मैं आपको पहले बता चुका हूँ, डायरेक्टर अगर मीटिंग फी अटेंड करते हैं तो फ्लैट रेट है जो कि आप इसको काटेंगे, जो कि बाद में क्रेडिट आपको मिल जाएगा, इसको इनकम में जमा कर दीजिएगा जो डायरेक्टर फी उसको मिलेगी। 24 टाइम लिमिट फॉर असेसमेंट ऑफ रिकवरी ऑफ विथहोल्डिंग इनकम टैक्स है। लेकिन बात ये हो रही है कि इनकम टैक्स की रिकवरी के लिए लॉ ने सुप्रीम कोर्ट तक की जजमेंट्स आ चुकी हैं, अब कोई टाइम लिमिटेशन इस पे अप्लाई नहीं है, किसी भी साल का पीछे वो जाके आपसे रिकवरी कर सकते हैं। ऑब्वियसली पहले असेसमेंट होगी, शोकाज होगा, लेकिन प्रैक्टिकली 6 साल से पीछे टैक्स ऑफिस नहीं जा रहा 174 सेक्शन की वजह से। लेकिन ये मैं बताता चलूं कि लीगली इसमें टाइम लिमिटेशन जो 6 साल वाली 177 या 214 सी पे अप्लाई होती है, वो 161 विथहोल्डिंग टैक्स के ऊपर अप्लाई नहीं होती। 25 जी, कितना टारगेट अचीव होता है जी? मोर देन 75% टारगेट जो है वो एफबीआर का विथहोल्डिंग से पूरा होता है, बाकी का वो ऑडिट और अमेंडमेंट करके उसमें से रिकवरी पूरी कर लेते हैं। रेट ऑफ डिफॉल्ट सरचार्ज क्या होगा जी? अगर आपकी तरफ पैसे निकल आते हैं और अगर आपके पैसे उनकी तरफ निकले तो कंपनसेशन आपको रिफंड पे क्या मिलेगी? जो आपकी तरफ पैसे अगर बनते हैं 205 में 12% पर एनम है, और अगर आपका रिफंड उनकी तरफ निकल आया 171 सेक्शन में तो काइबर प्लस 0.5% पर एनम के हिसाब से आपको कंपनसेशन दी जाएगी, यानी दोनों साइड्स कवर कर दी। Exemptions to be considered while withholding income tax on payment against salaries to employees, ये कुछ स्पेसिफाइड है और भी होंगी। अगर मेडिकल अलाउंस की है, आपको पता है इसका 139 क्लॉज है, फैसिलिटी भी है, रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस भी है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ परक्विजिट्स है जो एम्प्लॉयर्स को है, क्लॉज 53 है, पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल है, रीइंबर्समेंट ऑफ ऑफिशियल एक्सपेंसेस है, और सर्टेन एग्जम्पशन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को दी गई है, तो इनको जरूर देखें व्हाइल कैलकुलेटिंग टैक्स ऑन जो आपका सैलरी के अगेंस्ट होगा। What are the various modes of collection of tax under the income tax law है जी? वो आपको पता है, रिटर्न्स के थ्रू है, असेसमेंट है, अपील आप करेंगे, रिकवरी है, एडवांस है, बाकी सेक्शन मैंने आपको कोट किए हुए हैं। इसी तरह ये ट्रांजिशनल प्रोविजन जो मैंने पहले आपको बताई थी 231 से लेके 236 टी तक। 29 जी, व्हाट आर द रूल्स रिगार्डिंग अपडेशन ऑफ एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट? अब इसमें क्या है, अब ये लिस्ट बेसिकली 1 जुलाई 2014 था जिसमें जो एफबीआर ने पोर्टल पे लिस्ट डाली है, और वो वैलिड होती है 28 फरवरी तक, और 1 मार्च को हर साल की नेक्स्ट जो फॉलोइंग होता है उसमें लिस्ट को अपडेट किया जाता है। मसलन इस वक्त जो 1 मार्च को लिस्ट अपडेट हुई है एटीएल की, वो टैक्स ये 2020 की बेस पे हुई है। अब जो 1 मार्च आपका आएगा 2022, वो 2021 की रिटर्न जो आप फाइल करेंगे, वक्त पे फाइल करेंगे, तो उस बेस पे वो अपडेट होगा और एटीएल की लिस्ट में आप आ जाएंगे। इश्यूज कौन कौन से हैं जी विथहोल्डिंग टैक्स फाइल करते वक्त? या तो विथहोल्डिंग इनकम टैक्स वो काटा नहीं जाता, या रेट गलत अप्लाई किए जाते हैं, एटीएल नॉन एटीएल का स्टेटस रेसिपिएंट का चेक नहीं होता, और स्टेटमेंट जो है वो एनुअल या क्वार्टरली फाइल नहीं की जाती, और या अल्टीमेटली क्या है कि डिपॉजिट जो टैक्स है वो लेट जमा कराया जाता है। 31 जी, ऑफेंसेस एंड प्रोसिक्यूशन जो मैंने पहले बताया था, अगर आप विथहोल्डिंग टैक्स जमा नहीं कराएंगे तो क्या होगा, तो उसमें डिफरेंट 4 मैंने लिए हैं। फेलियर ऑफ विथहोल्डिंग टैक्स होगा प्रोविजंस, तो इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 ईयर और बोथ है। फेलियर टू मेंटेन रिकॉर्ड्स है, इसी तरह इंटेंशनल होगी तो इम्प्रिजनमेंट 2 ईयर और बोथ है। नॉन डेलिबरेट होगी तो फिर 50,000 रुपए है, ठीक है, उसे एक्सीड नहीं करेगा। इसी तरह अगर आप फॉल्स मिसलीडिंग स्टेटमेंट देंगे, इंटेंशनल है तो फाइन और इम्प्रिजनमेंट 2 ईयर और बोथ है।
और अदर केसेस में अमाउंट स्पेसिफाइड नहीं है। ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे आप इनकम टैक्स अथॉरिटीज को तो अमाउंट स्पेसिफाइड नहीं, इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 ईयर होगा। इज विदहोल्डिंग इनकम टैक्स एप्लीकेबल ऑन मार्कअप पेड ऑन लोन फ्रॉम ए बैंकिंग कंपनी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी बेसिकली प्रैक्टिस में। तो आपकी जो एग्जेम्पशन है बेसिकली वो 5(2) रूल है 7th शेड्यूल का, जो ये कहता है कि बैंकिंग कंपनी एज ए रेसिपिएंट ऑफ जो मार्कअप होगा, क्योंकि लोन तो अगर मेरे ही पैसे मुझे आप वापस कर रहे हैं उस पर तो टैक्स वैसे भी नहीं आना, तो मार्कअप जो आप वापस करेंगे ओवर एंड अबव उस पर विदहोल्डिंग टैक्स की प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। एक वक्त था कि इन्होंने एक सर्कुलर निकाला था, लोगों को नोटिस दिए थे, लेकिन फिर ओब्वियसली बाद में इनको विड्रॉ करना पड़ गया। हाँ जी, लीगल प्रोविजंस क्या विदहोल्डिंग इनकम टैक्स स्टेटमेंट्स की, ये मैं बताता चलूं कि इस वक्त तो 165 की जो स्टेटमेंट आपने फाइल करनी है 149 और 155 या 153 की वो कटी है, और अब आपको नील की भी विदहोल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करना लाजमी है ताकि कल को आप पेनल्टीज और प्रोसिक्यूशन से बच सके। इंपैक्ट क्या होगा जी रिकवरी विदहोल्डिंग टैक्स फ्रॉम रेसिपिएंट? अगर रेसिपिएंट टैक्स पे कर दे तो और पेयर पे ना करे तो क्या होगा, उसमें यह है कि आप सरचार्ज जो होगा अगर लेट पेमेंट हुई है तो वो रिकवर कर सकते हैं, और एक्सपेंसेस फिर भी डिसअलाउ हो सकते हैं पेयर के, इवन के रेसिपिएंट अगर टैक्स पे कर देगा, क्योंकि वो पेयर के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना चाहते हैं। अमाउंट नहीं वो मांगेंगे लेकिन एक्सपेंस वो डिसअलाउ कर सकते हैं, 162 सेक्शन में ये लिखा हुआ है। 35 है जी, आप डिफॉल्ट सरचार्ज से या लेट पेमेंट से या नॉन पेमेंट ऑफ विदहोल्डिंग टैक्स से कैसे बच सकते हैं? अगर आपके पास विदहोल्डिंग का डिफॉल्ट आ गया है और रिफंड आपके प्रीसीडिंग टैक्स ईयर में पड़े हुए हैं तो आप उनकी एडजस्टमेंट आपस में कर सकते हैं और डिफॉल्ट सरचार्ज से बच सकते हैं। मसलन अगर 10 लाख की डिमांड है, पीछे रिफंड ही 15 लाख पड़ा हुआ है, तो आपको डिफॉल्ट सरचार्ज से बचत हो सकती है। इस पे जो रेफर्ड जजमेंट है वो मैंने इसमें हाईलाइट करके आपको दे दी है, इस बेस पे आप इस पे डिफॉल्ट सरचार्ज से बच सकते हैं। 36 है जी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिकंसिलिएशन ऑफ स्टेटमेंट्स है? रिपोर्ट जो आप विदहोल्डिंग स्टेटमेंट्स करते हैं, देखें उसमें जितनी भी रिटर्न आपने फाइल की है, एक्शन सब कुछ है, उसके ऊपर उसको टैली करने के लिए बेसिकली 44(4) की रिकंसिलिएशन मांगी जाती है ताकि पता चल सके कि कितना टैक्स बनता था और कितना काटा और कितना नहीं काटा। 37 है जी, व्हाट आर द वेरियस डिस्प्यूट्स एंड देयर इफेक्ट्स रिलेटेड टू नॉन कंप्लायंस ऑफ विदहोल्डिंग स्टेटमेंट्स? अगर आप बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं, नहीं फाइल करते हैं तो पेनल्टी 182 में है, लेट फाइलिंग की पेनल्टी 182 के अंदर है। फिर जिन लोगों के बिलो टैक्सेबल लिमिट है उनकी भी रिक्वायरमेंट है कि उसको शो करना होता है, लेकिन लोग शो नहीं कर रहे होते। इसी तरह एग्जम्पशन आपने जो मैंने पहले कहा 586 SRO आप चला गया, 46AA पार्ट 4 ऑफ सेकंड शेड्यूल के, उसको आप देख सकते हैं। फिर इसी तरह जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अगर आप खरीदेंगे तो क्लॉज 12 ऑफ पार्ट 4 ऑफ सेकंड शेड्यूल, उसकी प्री कंडीशन आप मेट करें तो विदहोल्डिंग टैक्स नहीं काटना होगा। कुछ लिटिगेशन की लैंडमार्क जजमेंट से बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जम्पशंस की इंटरप्रिटेशन चाहते हैं तो वो रेवेन्यू की फेवर में ज्यादा केस जाते हैं, और डिसएडवांटेज टू द क्लेमेंट है, ये उसकी जजमेंट रेफर कर दी है। CIR अपील आपका जो ऑर्डर है उसको सेट असाइड पहले कर सकते थे, टैक्स ईयर 2011 से ऑनवर्ड अब वो सेट असाइड नहीं कर सकते। उनकी कमिश्नर इनर रेवेन्यू अपील्स की जो पावर जो है वो विड्रॉ हो चुकी है सेट असाइड की। ट्राइब्यूनल और कोर्ट्स की अभी बाकी है, वो इंटैक्ट है। एग्जम्पशंस ऑन सेकंड शेड्यूल में आप ओबीएस है कि एग्जम्पशन सर्टिफिकेट देंगे तो वो मानेंगे, ऑटोमेटिक नहीं है। इसी तरह ऑडिट में अगर आपका केस आता है 170 214 C और आपका विदहोल्डिंग 21C जो विदहोल्डिंग टैक्स पूरा हो जाता है तो वहां भी कई दफा छूट मिल जाती है। लेकिन अब सवाल ये हो रहा है कि जो असेसमेंट वाला ऑफिसर है वो अलग है और जिन्होंने विदहोल्डिंग की प्रोविजंस की कंप्लायंस करवानी होती है वो कमिश्नर आपके, वो जो टैक्सेशन ऑफिसर है बेसिकली वो अलग होगा। 2 एसेंशियल्स हैं जी 161 के लिए, टैक्स पेयर विदहोल्डिंग एजेंट होना चाहिए और पॉइंट आउट टैक्सेबल पेमेंट है, ये इस पे जजमेंट आई हुई है। टाइम लिमिटेशन अप्लाई नहीं होता, पहले भी मैंने कोट किया, अब दोबारा से उसके अंदर एक लिस्ट बना दी है। और जो बिलो टैक्सेबल लिमिट है उसको भी शो करना होता है, ये जजमेंट भी साथ कोट कर दी है। 39 है जी, जो इनकम अर्न्ड बाय टैक्स पेयर बीइंग एन इंडिविजुअल डोमिसाइल्ड कंपनी एंड AOP जो रेजिडेंट इन ट्राइबल एरिया, उसका क्या करना है? वैसे तो ये 146 क्लॉज था जिसमें ये एग्जेम्प्ट इनको एग्जम्पशन दी गई थी, और पैराग्राफ D ऑफ आर्टिकल 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड 1973 का जो कि 30 जून 2023 तक उसको एग्जम्पशन देता है। अब वो 146 जो क्लॉज है वो तो हो गया खत्म, लेकिन उसके पीछे ही 145A है जो 1 जुलाई 2019 से एप्लीकेबल था, वो अभी तक इंटैक्ट है। तो मेरे मुताबिक तो अभी तक ये एग्जम्पशन इंटैक्ट ही है। 40 है जी, अगर आप फाटा और बाटा में पेमेंट्स करेंगे तो टैक्स की विदहोल्डिंग का क्या स्टेटस है? तो अभी पेयर बीइंग एज ए विदहोल्डिंग एजेंट अगर होगा तो वो सच टैक्स काटेगा,
अनलेस वो आपको एग्जम्पशन सर्टिफिकेट ना प्रोड्यूस कर दे। अब आजाद जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेटस है उसके अंदर जो पेमेंट्स आप उनको करेंगे तो उसके लिए अभी क्लॉज इंटैक्ट है, वो 46AA में वो 3 ही है जो कहता है कि जी इसका आप टैक्स नहीं विद होल्ड करेंगे। 42 जो आपके पास है जी क्वेश्चन, हाउ विद होल्डिंग इन टैक्स विल बी डिडक्टेड ऑन पेमेंट्स टू शिपिंग कंपनी, एयर कैरियर, पैसेंजर टिकट्स एंड कार्गो चार्जेस ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेड। तो इसके ऊपर डिफरेंट क्लॉजेज हैं जो एग्जम्पशन देते हैं। पहले तो 153 है, वो सेंड पेमेंट्स पे वर्च्यू ऑफ क्लॉज आपके साथ रेफर्ड है, 46AA पार्ट 4 है। उसके बाद ये फर्दर पेमेंट्स हैं जो टिकट्स वाली हैं, इसके लिए क्लॉजेज एक डिफरेंट है। 43B है जी पार्ट 4 का, 43C है बी एयर टिकट्स के कमीशन एजेंट्स के लिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए है 43C पार्ट 4। कैरिज ऑफ गुड्स और ट्रांसपोर्टेड जो है वो 43D एंड E है। और सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस है, वो ये है कि आपने अपना जो टैक्स लायबिलिटी है रिस्पेक्टिव क्लॉज में वो डिस्चार्ज की हो। 44 है जी स्टेटस ऑफ विदहोल्डिंग टैक्स ऑफ पेमेंट्स अगेंस्ट बिल्डिंग रेंटल्स एंड व्हीकल रेंटल्स है। बिल्डिंग वाला तो आपको पता है 155 में है, और व्हीकल रेंटल अगर आप लीजिंग वाले हैं तो वो एग्जेम्प्ट है। अदरवाइज अगर आप किसी और से रेंट पे गाड़ी लेंगे तो आप विदहोल्डिंग एजेंट अगर है तो आपको 153 में टैक्स काटना पड़ेगा। 45 है जी प्रेजेंट स्टेटस जो है, अगर आप ग्रांट्स, स्टाइपेंड, सब ग्रांट, फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रांट्स, पेमेंट्स टू कम्युनिटीज, आप एडवांसेस एंड एक्सपोजर भेज देते हैं तो क्या है, तो वो रिस्पेक्टिव सेक्शन जो आपको बताएगा उसके मुताबिक आपको उसके टैक्स काटना पड़ेगा जी। इवन कि आप एनपीओ भी होंगे, आपको पता होना चाहिए कि एनपीओ और जो वेलफेयर इंस्टीट्यूट्स हैं उनको विदहोल्डिंग एजेंट का स्टेटस मिला हुआ है। व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ विदहोल्डिंग इंटरेस्ट ऑन पेमेंट अगेंस्ट सैलरीज है, उसके बारे में 149 जो है आपको पता है, उसमें मैंने शेयरिंग आपसे कर ली है। उसके बाद रिडक्शन जो आपको दी जाएंगी उनमें से जो 25% थी अवेलेबल फुल टाइम टीचर्स और स्ट्रक्चर, वो 22 मार्च से खत्म हो गई है। और एग्जम्पशन अगर कोई और रिटायरमेंट बेनिफिट्स या और कोई है तो वो सैलरी के नोट्स जो हमने दिए उसमें आप यूज कर सकते हैं। 47 है जी व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ 100% मोर टैक्स अगर आपका कट जाता है 10th शेड्यूल में बीइंग एज नॉन एटीएल तो क्या होगा। तो उसमें लॉ ये कहता है जी 169(4) में कि अगर आप रिटर्न अपनी वक्त पे फाइल कर देते हैं रूल 4 ऑफ 10th शेड्यूल के मुताबिक बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ असेसमेंट, तो वो टैक्स आपका जो पूरे का पूरा जो डबल कटा हुआ है वो आप वापस ले सकते हैं। 48 है जी फॉर्मेट जो है उसके अंदर स्पेसिफाइड चीजें, डाटा है, पेमेंट है, विदहोल्डिंग टैक्स है, बिल है, ये हमने विदहोल्डिंग की जो स्टेटमेंट है वहां से निकाला है उसका फॉर्मेट। उसमें 149, 153 और सारी इकट्ठी करके अब आप विदहोल्डिंग स्टेटमेंट्स फाइल कर रहे हैं जो कि ऑनलाइन डाटा अवेलेबल है। एनुअल का जो है जी उसमें भी डाटा इसी तरह ही है, उसमें विदहोल्डिंग टैक्स है, बिल है, पेमेंट वेरिफिकेशन, क्योंकि एनुअल सिर्फ मैंने आपको शुरू में बताया था कि वो सिर्फ सैलरी के लिए है, वो 153 के लिए एप्लीकेबल नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट की जो डिस्कशन ऑन फीडिंग ऑफ क्वार्टरली एनुअल विदहोल्डिंग स्टेटमेंट्स है, ओनली क्वार्टरली जो है वो मैंने आपको बताया है। और प्लस आप 1 जुलाई 2020 से ये क्वार्टरली हो चुका हुआ है, पहले ये हाफ ईयरली था, तो आप उसको भी वक्त पे फाइल करें और जो टैक्स है उसको भी वक्त पे जमा करें। ये जी मेरी साइड से जो 50 क्वेश्चन थे वो मैंने कोशिश की कि मुख्तलिफ चीजें कवर करूं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप उसमें मेरे साथ वो कर सकते हैं। जी हेलो सर, यू आर ऑडिबल टू अस। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो ही मे आस्क द क्वेश्चन बाय रेजिंग हिज हैंड। जी सर नईम साहब का माइक ओपन कर रहा हूँ। जी प्लीज सर, नईम साहब इज देयर टू आस्क द क्वेश्चन। जी नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर थैंक यू, आपने बड़े अच्छे तरीके से और स्पीडली जो है ना बहुत सी चीजें जो है ना वो आपने कवर की हैं। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जिस तरह ये रजीम का मतलब रजीम से रिलेटेड वेबिनार था, तो एक तो थोड़ा सा रजीम्स जो है ना उसको जस्ट जो है ना स्पीडली थोड़ा सा बता दें कि जैसा प्रिजेंटिव रजीम है, नॉर्मल टैक्स रजीम है, एफटीआर है एक ये, और मिनिमम जो है ना इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। दूसरे नंबर पे सर ये विद होल्डिंग के हवाले से थोड़ा आपने ब्रीफ कर दिया है। डिपॉजिट के हवाले से मेरा क्वेश्चन है कि ये जिस तरह एडजस्टेबल और फाइनल का जो है ना सेग्रीगेशन की गई, जब हम टैक्स जमा करवाते हैं तो एफडीआर पोर्टल पे भी जो एडजस्टेबल और फाइनल का जो है ना वहां पे हमें सिलेक्ट करना पड़ता है। अगर कोई ऐसा जिसका टैक्स एडजस्टेबल है लेकिन वो फाइनल में टैक्स जमा हो गया तो क्या वो क्लेम कर सकता है? नहीं देखिए आपके 3 सवाल हो गए हैं।
तो जी सर। आपने जो पहला क्वेश्चन किया था, देखिए पहली बात तो ये है कि अगर किसी ने इनएडवर्टेंटली उसको एफटीआर लिख दिया तो उसके लिख देने से वो एफटीआर नहीं बन जाएगा, ठीक है। ओके सर। तो इस पे जजमेंट्स आई हुई है, अगर कोई लॉ, कोई रूल, कोई सर्कुलर, कोई ऐसी चीज जो इनकंसिस्टेंट विद द लॉ है, तो प्रिवेल इनकम टैक्स लॉ ही करेगा। वो गलती से किया हुआ काम जो होगा ना वो प्रिवेल नहीं करेगा। ठीक हो गया। जी सर। आप उसकी यहाँ पे सर मेरा सॉरी मैं सर इंटरप्ट कर रहा हूँ, यहाँ कर ले आप क्वेश्चन कर। अकॉर्डिंगली जो हर सेक्शन में लिखा हुआ है कि ये फाइनल है, मिनिमम है, ये एडजस्टेबल, जैसे 153(5)(a) है, उसमें जी। मैन्युफैक्चरर या लिस्टेड कंपनी अगर होती है तो उसके लिए टैक्स एडजस्टेबल। अगर उसका कोई टैक्स जो है ना एओपी इंडिविजुअल या कोई भी विद होल्डिंग जो प्रिस्क्राइब्ड पर्सन है, अगर वो फाइनल में जमा यानी पीएसआईडी बनाते वक्त उसको सिलेक्ट कर लेता है, फाइनल सिलेक्ट कर लेता है, तो वो अगेंस्ट द लॉ ही हुआ, क्योंकि 153(5)(a) जो है ना वो कहता है कि ये कंपनी जो है ना वो मैन्युफैक्चरर है, तो मैन्युफैक्चरर के तौर पे ही इसका टैक्स जमा होना चाहिए, और एडजस्टेबल अगेंस्ट टैक्स लायबिलिटी ईयर एंड रिटर्न के साथ वो एडजस्टेबल हो जाएगी। तो उसको फिर हम वो लेटर लिख के ना मैन्युफैक्चरिंग फिर देखिए मैंने अभी आपको यही बताया है, अगर एक कोई बंदा, जी सर, अगर एम्प्लॉयर आपका टैक्स काटे फर्ज करे सैलरी पे और वो एडजस्टेबल की जगह फाइनल कर दे, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि ये फाइनल टैक्स रिजीम में चला गया। पीछे ठीक है सर। एक वक्त ये भी था कि जब फर्नीचर का था ना, आप फर्नीचर कंपनी की रिटर्न हम फाइल करते थे, फर्नीचर पे इनिशियल लॉन्च भी देती थी रिटर्न, ठीक है। अब अगर कोई चीज वायलेट करके लॉ को अपनी तरफ से कोई चीज बना देता है, या सर्कुलर है या कोई चीज है या जजमेंट है, तो प्रिवेल लॉ नहीं करना है, उस गलत चीज ने प्रिवेल नहीं करना, ठीक है। ओके, तो इसका क्रेडिट आपको, मेरा क्वेश्चन ये जी मिलेगा, करेक्ट नहीं मिलेगा, ये कि फिर आप अपने सीपीआर की करेक्शन कराएं ना, फिर आप अपने सीपीआर की करेक्शन कराएं वहां जाके। उन्होंने कहें जी पहली बात तो ये है कि एफटीआर से वो एडजस्टेबल रिजीम लेके जी उसमें करवाएं। अगर वो नहीं करते तो लेटर लिख दे उन्हें कि जनाब चूंकि मेरी इनकम कवर्ड ही नॉर्मल टैक्स रिजीम में है या मिनिमम में है, तो मैं एफटीआर में तो जा नहीं सकता, उसके लिख देने से तो मेरी इनकम नहीं ना एफटीआर बन जाएगी। ओके सर। दूसरा सर क्वेश्चन मेरा ये कि जिस तरह गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनके पास कुछ तो ऐसे गवर्नमेंट के भी अदारे हैं जिनके पास अभी जो है ना वो ऑनलाइन लॉगिन वगैरह नहीं, अगर है तो वो मिनिस्ट्री ने डिफाइन किया हुआ, लेकिन अभी तक उसके जो सब डिपार्टमेंट्स है उनको जो है ना ही एक्सेस है और ना ही उनके पास है। अगर वो किसी कंपनी का या किसी अदारे का टैक्स काटता है तो वो मैनुअल ही अभी तक जो है ना वो जमा करवा रहा है, तो उसका तरीका मैं आपको मैं बता देता हूँ। हमारे केस में ये हुआ कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने हमारा ना 40 लाख रुपए टैक्स काटा। ओके सर, ठीक हो गया। अब आपकी एग्जांपल, मेरी एग्जांपल बिल्कुल आपके सवाल को फिट हो रही है। उसने क्या किया, उन्होंने कहा जी मुझे 40 लाख का सीपीआर ला के दे। मैंने कहा जनाब वो चेक जमा कराते हैं, वो सीपीआर नहीं जमा कराते, ठीक है। तो उन्होंने कहा, मैंने उनके लेटर हेड पे लिखवाया कि जी हमने ना इनका टैक्स काटा हुआ और जमा कराया हुआ। उसने कहा जी मैं नहीं मानता, ये जमा ही नहीं हुआ। मैंने कहा देखें, मैंने फिर उनसे प्रेशर उनको कहा कि देखिए वो नहीं मान रहे, उन्होंने 40 लाख की डिमांड हमारी तरफ निकाल दी है। फिर इन्होंने हमने सेट साइड ऊपर मतलब वापस करवाया, इसको वापस आए। उसमें फिर मैंने लेटर हेड पे उनके ये लिखवाया कि ये चेक नंबर है, इसमें इतनी अमाउंट इस बंदे की है, क्योंकि एक चेक में कोई 2000 पार्टियां थी। ओके सर। उसने बकायदा चेक नंबर लिखा और लिखा कि ये चेक में इनका जो शेयर है इतना इतना हमने जमा करा दिया, यानी कि उनसे अंडरटेकिंग जो है ना वो ले ली, अंडरटेकिंग विद स्पेसिफिक रेफरेंस के चेक कौन सा जमा कराया आपने, उसका नंबर और हमारी अमाउंट बता दें तो बात खत्म हो जाएगी। तो क्या जिस तरह सर कुछ जो है ना, जिस तरह अभी आपने बताया कि वेरियस पार्टीज होती हैं, वो जब जमा करवाते हैं तो सीपीआर के ऊपर जो है ना वो आ जाता है वेरियस पार्टीज। अब स्पेसिफिकली अगर मैं ये कहूँ कि मैं हूँ, कंपनी है एबीसी, अब मेरा टैक्स भी उन्होंने टैक्स पेयर में जो जहाँ पे मेरा टैक्स पेयर नेम आना चाहिए वहां पे वेरियस टैक्स पेयर लिख दे, वेरियस टैक्स पेयर नहीं, फिर वो ब्रेकअप देगा ना। जब आपने फर्ज करें ना मैंने 2 करोड़ रुपया इकट्ठा ही जमा करा दिया, जी अब 2 करोड़ हो सकता है कि उसमें 1500 पार्टियां हो, जी तो उसका ब्रेकअप बना के देना पड़ेगा ना कि आपका उसमें कितना है। वो 2 करोड़ सारा आपका तो नहीं है ना, हो भी सकता है, वो डिपेंड करता है। लेकिन चूंकि सीपीआर में सर जो है ना वो वेरियस सीपीआर नहीं होता ना, वो पे ऑर्डर जमा कराते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सीपीआर नहीं निकालता, सीपीआर तो होता ही नहीं उसके पास। वो तो एक पे ऑर्डर पकड़ते हैं या चेक पकड़ा और गवर्नमेंट के खजाने में जमा करा दिया, बस। ओके, अगर सर गवर्नमेंट का कोई अदारा नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी है या कोई भी है, उसने जो है ना
वो इस तरह वेरियस जो है ना मतलब सिलेक्ट करके या इस तरह तो attach ब्रेकअप file ले size ना, जो भी है। ब्रेकअप ले ना उसे कि मेरा उसमें नाम लिख के बकायदा बताए इसमें मेरा कितना है, क्योंकि ठीक आपको है, तो उतना ही मतलब मिलना है ना जो आपका है। तो वो इस तरह अंडरटेकिंग अलग सेपरेट लेके स्पेसिफिकली वो क्लेम हो सकता है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन हो नहीं तो है। सकता है, लेकिन बात यह है कि ये एक एफटीएन वाले या गवर्नमेंट के इदारे उनको छूट दी गई है, प्राइवेट इदारा सीपीआर क्यों नहीं निकाल रहा? वो तो निकाले सीपीआर, उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है? ठीक है सर, एक और सर मेरा क्वेश्चन है कि ये जो सीजीटी है अंडर सेक्शन 37, जी इसमें जो मतलब लॉस है वो कितनी देर तक हम जो है ना वो एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो भी विद होल्डिंग उसकी करनी होती है, आई थिंक 25% म्यूचुअल फंड्स पे है और बाकी जो है ना वो, तो उसकी विद होल्डिंग टैक्स की जो है ना मतलब अगर हम करते हैं और उस पर लॉसेज अगर होते हैं तो फिर तो विद होल्डिंग भी नहीं होगी। तो क्या एनसीसीपीएल जो है ना उस विद होल्डिंग को जो है ना करेगा, या पहले वो गेन अगर अगले साल होता है तो उसको पहले एडजस्ट करेगा, रिमेनिंग फिर जो है ना अगर कोई बचता है तो टैक्स काटेगा? इसका सर क्या विद होल्डिंग का रूल है? देखिए, बात यह है कि उसने तो पेमेंट देख रही है ना, अगर वो आपको जी पेमेंट कर रहा है, क्योंकि विद जी होल्डिंग जी तो सारी पेमेंट के ऊपर है। अगर तो आपको पेमेंट होनी है तो फिर तो वो टैक्स काटेगा, ठीक है। ठीक है सर। अगर 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 उस पे ऊपर लॉ ये कहता है कि जी आपने लॉसेस को एडजस्ट करके काटना है तो वो माइनस करेगा। अगर जी वो नहीं कह रहा तो फिर ग्रॉस अमाउंट पे वो टैक्स कट जाएगा आपका। दोनों में से कोई एक चीज तो होनी है, ठीक है। अब तो लेकिन ये ये चीज तय है कि होनी पेमेंट के ऊपर ही है। वो तो जो पेमेंट आपको आएगी वो काट के आपको दे देगा। अब रही बात आगे आपको जब मिलेगा तो आपको जी पता है जी वो सेपरेट ब्लॉक में कवर्ड है। तो जी जी सेपरेट ब्लॉक सेपरेट आपको ब्लॉक, पता है वो फिक्स टैक्स है, वो तो ले लिया उन्होंने पैसा, ठीक है। सेपरेट रेट से वो अप्लाई होता है। जी 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 बिल्कुल ऐसे 37A में तो सेपरेट ब्लॉक ही आपको है, उसके अलावा तो और कोई चीज उसमें है नहीं। जी जी मेरा मतलब आधा क्वेश्चन अभी है सर कि वो जो लॉस हो पिछले साल लॉस हुआ था, सीजीटी नहीं, लॉस पिछले हुआ था। साल होता ही है कि जिस साल में पेमेंट है उसको देखना है ना उसने। अगर लॉ ऐसी कोई फैसिलिटी देगा, जैसे सैलरी है, अगर आप किसी का एक साल में ज्यादा काट लेते हैं या कम सर काटते हैं वो तो ड्यूरिंग, आप टैक्स की बात कर रहे हैं ना कि पेमेंट होगी तो टैक्स जो है ना विद होल्ड होगा। मैं कह रहा हूँ कि सपोज गेन नहीं हुआ, गेन होगा तो फिर उस पे जो है ना टैक्स भी कटेगा। अगर गेन की बजाय जो है ना वो लॉस हुआ है तो लॉस कितने साल तक वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? और वो अगले मैं साल बता जब देता अगर, हूँ। वो 37A में ना उसने दिया हुआ 3 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है वो ठीक है सर रेसिपिएंट वो, को ये परमिशन दी गई है। पहले नहीं था, 19 या 20 में ये शुरू हुआ है कि अब आप जी जी 37A का लॉस भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन 3 साल के ठीक, लिए। ठीक है सर। वो कैरी फोर के पीछे 2 साल पहले मेरा लॉस हुआ लेकिन उसके बाद मुझे गेन होना शुरू हो गया, तो क्या वो पिछला जो लॉस कैरी फॉरवर्ड हुआ है जी उसको पहले गेन के साथ सेट ऑफ होगा? क्या ये लॉ अलाउ करता है नहीं उसके नहीं, बाद जो दो है ना? चीजें दो चीजें मुख्तलिफ है, दो चीजें जी मुख्तलिफ सर, है। ये फैसिलिटी रेसिपिएंट को दी गई है, पेयर के लिए नहीं है। ओके सर। ये आप दोनों चीजें मिक्स कर रहे हैं। ये जो मैं नहीं आपको मैं सर कानून बता रहा हूँ क्लैरिफिकेशन ये चाह रहा था। रेसिपिएंट के लिए, ये रेसिपिएंट के लिए है, वो कर सकता है। ओके सर, ये वो पेयर के कर लिए सकते नहीं है। हैं। पेयर ने ड्यूरिंग द टैक्स ईयर को देखना है, अनलेस को स्पेसिफिकली कुछ छूट ना उसको दी गई हो। तो सर ये कंपनीज के केस में और बाकी जो है ना ये एनसीसीपीएल जो है ना वही इसका जो है ना वो लॉसेस का अब तो लॉसेस हाँ या जी हाँ जी, गेन उस अब पे विद करता है। होल्डिंग एजेंट उसको बनाया हुआ ना, ऐसे ही है, ऐसे ही जी है। तो वो इसको कैसे ट्रीट करेगा? अभी बता तो लॉस दिया को मैंने कि पिछले, वो ड्यूरिंग दी टैक्स ईयर को देखेगा, पिछले और अगले को नहीं देखेगा। तो वो पिछला अल- लॉस जो है ना उसको कोई नहीं नहीं, एडजस्टमेंट वो नहीं उसके होगी लिए उसकी? वो नहीं कर सकता अनलेस लॉ में कोई ऐसी चीज लिख ना दी जाए कि हाँ जी आप कर सकते हैं। अमूमन पेयर का आगे और पिछले लॉस के साथ कोई लेना देना नहीं होता, अनलेस लॉ उसको फैसिलिटेट ना करे। थैंक यू सर, आपने बड़ा अच्छे तरीके से बताया। सर काइंडली ये थोड़ा सा मिनिमम टैक्स और जो ये रजीम्स है ना, काइंडली हाँ जस्ट 1 लाइन या 2 लाइन्स में ये जो है ना बता दीजिएगा हाँ, ताकि वो मैं हमें। वो पता क्या है, वो तो पता है। अगर शॉर्ट लेना है, अगर आपने जी जी फाइनल टैक्स रिजीम चेक करना है तो आप 169 सेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है सर, आपको ठीक पता है सर। लग जाएगा कौन से केसेस फाइनल टैक्स रिजीम में आते हैं। कुछ अदरवाइज कुछ सेक्शन में भी लिखा हुआ है, ठीक है। ओके इसके सर। अलावा अब मोस्टली देखें एफटीआर में बचा क्या, अब आपके पास एक्सपोर्ट है, डिविडेंड है, प्राइस बॉन्ड है, पेट्रोल पंप है, ठीक है। जी 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 बहुत थोड़े केसेस है जो एफटीआर के अंदर बचे हैं। अब जी या जी तो नॉर्मल टैक्स रिजीम में चला गया या मिनिमम या में या मिनिमम सेपरेट में। ब्लॉक में चला गया, ठीक है। जी जी तो सर। लेकिन किताबें, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हर सूरत में अब आपको बनानी ही पड़ेगी। जी जी वो तो डेफिनेटली। सर तो सेपरेट ब्लॉक इनकम में जो है वो ये सीजीटी है और इसके अलावा
और कौन सा जो है ना सेक्शन प्रॉफिट ऑन डेट मिनिमम में चला गया है, POD ज्यादा मिनिमम में गए हैं, ज्यादा मिनिमम में गए हैं। जी एक्सपो 148 भी जो है ना वो भी मिनिमम है। जी मैंने बताया ज्यादा कमर्शियल इंपोर्टर कॉन्ट्रैक्टर। थैंक यू सर। मैंने आप मजा तो बहुत आ रहा है आपसे और भी डिस्कशन का, लेकिन क्योंकि बाकी पार्टिसिपेंट्स भी हैं इसलिए थैंक यू वेरी मच नईम साहब, थैंक यू सर। ओके नईम साहब, थैंक यू वेरी मच। नाउ सर पार्टिसिपेंट अजहर बिलाल वो आपसे क्वेश्चन करेंगे। अजहर बिलाल, यू मे आस्क द क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मेरा बहुत छोटा सा और सिंपल सा क्वेश्चन होगा नदीम सर आपसे। ये जो 236 आई है जिसके अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जब 2 लाख का थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाता है स्टूडेंट की फी का ड्यूरिंग द ईयर, तो उसमें डिडक्शन करते हैं, तो उसमें क्या गिलगित बल्तिस्तान एंड आजाद जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनका भी डिडक्ट होता है या नहीं? नहीं, असल में पता क्या उनके जो होता ये है कि जो आजाद जम्मू कश्मीर का अगर आप साइट खोलेंगे ना, उनका लॉ हमेशा अलग ही रहा। अब इस वक्त उन्होंने पाकिस्तान का इनकम टैक्स लॉ अडॉप्ट कर लिया हुआ है। ओके ठीक है, जीबी का मुझे चेक करना पड़ेगा गिलगित बल्तिस्तान का, लेकिन आजाद जम्मू कश्मीर ने इनकम टैक्स पहले थोड़ा सा उनका मुख्तलिफ होता था, अब उन्होंने एग्जैक्टली इनकम टैक्स और सेल टैक्स वही अडॉप्ट कर लिया है जो पाकिस्तान का है। एक्चुअली मुझे भी कंफ्यूजन थोड़ा ज्यादा गिलगित और बल्तिस्तान से रिलेटेड ही थी, क्योंकि मैंने गिलगित बल्तिस्तान के बारे में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं पढ़ी हुई थी और मुझे आज ही पता लगा कि जीबी के लोग एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। नहीं, वो फिर देखना पड़ेगा ना जी, एग्जेम्पशन जुबानी नहीं ना होती, पहले जब तक हम चेक नहीं करेंगे उसके बगैर। लेकिन ये लॉ ने फैसिलिटी दी है कि उसको एटीएल की लिस्ट में वो ले आएंगे, अगर जीबी की लिस्ट में वो शामिल है बंदा, तो उसकी लिस्ट इंडिपेंडेंट है, वो अलग है। जीबी की लिस्ट भी सर अवेलेबल है एफबीआर की साइट पे अलग से? एफबीआर की नहीं, उनकी अपनी होगी ना जी, उनका अपना एक साइट है ना, वहां पे उसको चेक करेंगे आप। ओके मतलब इनकी अपनी साइट से होगा। चलें सर, ऐसे ही है चले। ओके सर ये अभी इन्होंने फैसिलिटी दे नहीं दी कि जो इंडिविजुअल एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में होगा उनकी विद होल्डिंग नहीं होगी 236 आई में? नहीं, उसमें तो उसने ये कहा कि जो बंदा, वो तो पहले की आई हुई है ना, आज की थोड़ी है वो, तो अभी थोड़ी आई, वो तो पहले की है कि जो एटीएल में होगा उस पे तो विद होल्डिंग टैक्स होना ही नहीं है। एग्जैक्टली सर, थैंक यू। वो तो दे दी हुई है, वो तो नॉन एटीएल वाले अब है उसके अंदर, ये बात आपकी ठीक है, पहले दोनों के लिए था, अब सिर्फ नॉन एटीएल के लिए है। सर थैंक यू सर। सर अभी पार्टिसिपेंट नुमान अहमद हैं, वो आपसे क्वेश्चन करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जॉब करता हूँ। मुझे एक छोटी सी कंफ्यूजन ये है कि जैसे हमारे टेंडर होता है कैंटीन्स वगैरह का, अब वो 1 ईयर के लिए होता है, अब उसके अंदर जो हम लोग विद होल्डिंग टैक्स डिडक्ट करते हैं बीइंग अ विद होल्डिंग एजेंट, वो अंडर सेक्शन 153C एज अ कॉन्ट्रैक्ट उसको हम लोग डिडक्ट करें जो कि फाइलर केस में 7.5%, या एक सेक्शन है जो अंडर ऑक्शन है, मुझे सेक्शन नंबर नहीं जेब में आ रहा, उसमें 10% है। क्या ये दोनों में से कोई भी कर सकते हैं या किसी एक में फॉल करेगा वो? नहीं, तो आपने ऑक्शन में लिया उसको? जी सर, उसका टेंडर होता है हमारा ना न्यूज़पेपर में। टेंडर ऑक्शन थोड़ी होता है। टेंडर तो ये होता है कि 4 बंदे आएंगे, जो जिसके नाम का निकल आया उसको मिल जाएगा। अब टेंडर और ऑक्शन में तो बोली लगती है ना जाके, वो एक अलग चीज है। ठीक है, तो सर ये मतलब बाय नेचर ये किसमें फॉल करता है, मुझे इसमें कंफ्यूजन है। आपने क्या किया? आपने टेंडर विन किया? न्यूज़पेपर में टेंडर देते हैं हम लोग, उसके अंदर जो एलिजिबल है पार्टीज वो अप्लाई करती हैं, ठीक है, फिर उनकी जो है वो उसी तरह से बोली होती है। ठीक है, उसमें से जिससे जो हाई हमें बिड देती है वो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अच्छा। तो अब इसमें जब विद होल्डिंग हम डिडक्ट करते हैं, अब वो क्या हम इसको एज अ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एक हमारा एग्रीमेंट साइन होता है, इसको एज अ कॉन्ट्रैक्ट ले अंडर सेक्शन 153C हम टैक्स डिडक्ट करें 7.5%, या एक सेक्शन है मुझे उसका सेक्शन नंबर भूल गया है, एक 234 कुछ है, पता नहीं कुछ ऐसे करके है। हाँ, उसके ऊपर 10% है, उसमें फाइलर का 10% है फाइलर, बिल्कुल सर। तो इनमें से कौन सा एप्लीकेबल हो या इनमें से किसी एक का भी हम उस पे अप्लाई कर सकते हैं? ये तो फिर मुझे चेक करना पड़ेगा। देखें, क्योंकि सेक्शन तो बड़ा जरूरी होता है, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में फॉल कर रहे हैं तो फिर इधर है। देखिए, वो उन्होंने कहा ऑक्शन में जो चीज आप खरीदेंगे, तो आपने तो चीज ली नहीं, आपने तो लिया टेंडर बेसिकली। सर मेरी भी बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू यही है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको 153(1)C में आना चाहिए।
आप दूसरे वाले में नहीं आ रहे हैं क्योंकि चीज तो आपने ली मैं- कोई नहीं है। मैं इसी के तहत सर डिडक्ट कर रहा हूँ टैक्स ना हाँ जी। 7.5%। लेकिन मुझे एक ओपिनियन मैंने ली थी ऑडिट जी। फर्म से ना, उन्होंने जी। कहा था कि आप दोनों में से जिसमें मर्जी आप डिडक्ट कर ले, दोनों ही एप्लीकेबल हो रहे हैं। लेकिन नहीं, मुझे दोनों यही डाउट एक था, मुझे वक्त ना में मैं सेटिस्फाई एक नहीं हो रहा था। एक वक्त में दोनों कैसे अप्लाई हो सकते हैं? एक ही होगा मतलब ना। नहीं नहीं, एक वक्त में दोनों नहीं, मतलब वो कह रहे हैं कि इन दोनों में से किसी एक के तहत आप काट सकते हैं। नहीं, आप अगर आप उसको देखते हैं ऑप्शन वाले में, तो वो गुड्स का जी है ना, उसने जो आप परचेज करते हैं। सर, उसमें वो ना थोड़ी वर्डिंग हम पढ़े तो उसमें वो ये भी करता है कि जो आपकी लीज है ना, सीरीज ऑफ हाँ। पेमेंट्स या लीज है, वो भी जी। इस तरह की वर्डिंग भी यूज कर रहा है। तो तो वहां वो से गुड्स थोड़ा ही डाउट होता है, क्योंकि ये भी सीरीज ऑफ पेमेंट्स होती है, सेम इंस्टॉलमेंट होती है मंथली, पहले आप फिर इस तरह है। आप ऐसे कीजिएगा, वो ना कॉन्ट्रैक्ट पढ़िएगा जो आपका आपस में तय हुआ है, उसमें क्या लिखा हुआ है। सर अगर तो उसमें वो तो ये होता है, कॉन्ट्रैक्ट में तो ये हमने लिखा होता है कि हमारा पीरियड यकम जुलाई से लेके 30 जून तक जो फाइनेंशियल पीरियड है, वो पीरियड मेंशन होता है। उसकी टोटल होता है कि टोटल आपका एनुअल कॉन्ट्रैक्ट इतना है, और उसकी हाँ। हमने 9 इंस्टॉलमेंट्स करते हैं सितंबर से लेके मई तक। अच्छा, ठीक है, वो इसमें आपके लिए हमने क्या वो कवर करेंगे? करना है। वो आपके लिए क्या करेंगे? एडवर्टीजमेंट देंगे आगे? नहीं सर, हम लोग पहले ऐड देते हैं न्यूज़पेपर में, उसके अंदर ठीक हमने है। ये लिखा होता है सारा कुछ कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड यहाँ से यहाँ तक होगा। ठीक अच्छा। है, और ये टर्म्स कंडीशंस है। ठीक है, हाँ। एडवांस रेंट 1/3 होगा जो टोटल उसका तय होगा। तो बाकी जो भी है उसके बाद फिर वो उसके लिए अप्लाई करते हैं, हमसे टेंडर डॉक्यूमेंट्स वो लेते हैं, और अप्लाई करने के बाद जो जो क्वालिफाई करती हैं फर्म्स, वो हम लोग उनको फिर कॉल करते हैं। वो फिर उसका जो है ना सीडीआर जमा करवाते हैं, जो इनिशियल जो जमा करवाना है एज अ सिक्योरिटी, और देन वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं बिडिंग में ना। फिर वो बिडिंग करके होती है उसके बाद प्रॉपर। क्या होगा? बिडिंग विन कर ली, उसके बाद क्या होगा? सब वो विन बताओ। होगी, फिर हमारा सर उनके साथ एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। और तो ठीक है, करना वो क्या हम है लोग उसमें, वो बताए ना, काम क्या है? सर करना क्या उसमें? कैंटीन्स का उन्होंने लेना होता है ना ठेका। अच्छा, ठीक है, उसके कैंटीन ऊपर के उन्होंने अब, ठेके है। अच्छा। हाँ, गुड्स वगैरह अच्छा। उनकी होती है सारा कुछ। ठीक है, अच्छा। सिर्फ उन्होंने हमारी प्लेस यूज करनी है। अच्छा, ठीक है। जी अच्छा अच्छा, कैंटीन्स का ठेका लेते हैं बेसिकली। जी जी, कैंटीन्स का सर, कैंटीन्स का। ये मोस्ट प्रोबेबल जी, ये उसमें 153 1C में ही जा रहा है, ये उधर नहीं ठीक हो जा गया रहा है। सर, ठीक है, इसको इधर बिल्कुल ही रखें। बिल्कुल ठीक। बाकी इसके एंड सेशन के सेकंड सर, बाद। जी, सेकंड सेकंड क्वेश्चन मेरा सर, सेकंड क्वेश्चन सर, कि अभी आपने बताया कि जोन सा 149 में जो हम लोग फुल टाइम टीचर को एग्जाम्पशन देते हैं 25%, वो जी, 22 मार्च से खत्म हो गई है। ऐसा ही है, ऐसा तो ही है। इसका जब हम लोग अब इसकी वर्किंग करेंगे टैक्स की, तो हम लोग 21 मार्च तक मतलब जो है वो 25% तक लेंगे, और 22 मार्च से ऑनवर्ड हम लोग जो है वो उसको खत्म कर देंगे। हाँ जी, ऐसी है, क्योंकि विद होल्डिंग एजेंट ने ठीक तो है, ऐसे ही करना है। लेकिन मसला पता ठीक हो क्या गया। है, जब रिटर्न आनी जी है ना इसकी, वो रिटर्न ने जी ऐसे जी नहीं सर। करना। जो हमें लग रहा है वो ये है कि वो इसकी जो एग्जम्पशन है ना, वो पूरे साल की खत्म करना चाह रहे हैं। इस पर डिस्प्यूट अब होना है लोगों का, क्योंकि बिल्कुल मेजर पीरियड तो एक्सपायर हो चुका है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है ना, 22 और मार्च है, अप्रैल मई जून, तकरीबन 3.25 महीने के लिए आपने पिछला जो जो 8.75 या 8.8 मंथ्स है, उनको आपने लटका दिया है। तो ये जी तो जी, अब एग्जाम्पशन को इनको चाहिए था। वैसे पहले इंटेंशन यही थी कि ये 1 जुलाई से अप्लाई होगा, लेकिन चूंकि उनके टारगेट अचीव नहीं हो रहे, कुछ प्रेशर्स भी हैं, उसको कवर जी करने जी। के लिए उन्होंने 22 मार्च से इसको अप्लाई किया है। लेकिन और ये सर फर्दर, जी सॉरी सर इंटरप्ट कर रहा हूँ, फर्दर इंटरप्शन जो है ना, फर्दर इसमें कॉम्प्लिकेट ये ऐसे भी हो जाएगा कि जो अंडर सेक्शन 62 और 63 हम फर्दर एग्जाम्पशन देते हैं, जो कोई जी इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये जैसे नेशनल जी। बैंक के फंड्स है हमारे, अभी अभी तो पेंशन और भाई, ये। अभी तो वो जो आपके है ना सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर वाले, उन्होंने भी लड़ाई करनी है। अभी तो बड़ा कुछ होना बिल्कुल है। ठीक है, बिल्कुल सबको बिल्कुल सर। उनको टैक्स क्रेडिट में डाल दिया है, स्टार्टअप को भी टैक्स सही है। क्रेडिट में डाल दिया है। ठीक है, कोल जी जी, वालों को जो प्रोजेक्ट्स पावर के लिए, उनको भी डाल दिया इन्होंने उधर। ठीक है, ये बिल्कुल फुल टाइम सही है, टीचर बिल्कुल को भी डाला है। तो मसला अब ये है बिल्कुल कि सही। वो तो जो चाहिए था कि रिस्पेक्टिव पीरियड पे करते हैं। बहरहाल और भी सवाल ले चलिए, लेते हैं, इंशाल्लाह ताला इसको करते हैं। सर, एक पार्टिसिपेंट का एक क्वेश्चन है जो कि वो जी खुद नहीं पूछ सकते, मैं उनके बिहाफ पे पूछ रहा हूँ जी। कि वो एम्प्लॉई हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के जिसके पास FTN है। हाँ। तो उन्होंने एक और अदारे की बिड सिक्योरिटी अपने पास रखी हुई है। ठीक है। उस बिड सिक्योरिटी पे वो जिस कंपनी की बिड सिक्योरिटी इनके पास है उनको प्रॉफिट एंड डेट देंगे जो कि अराउंड 10 लाख है। अच्छा। तो ये विद होल्डिंग कैसे करेंगे? और
कौन जी। सी प्रोविजन जो है वो अट्रैक्ट होगी इस पे? देखिए, पहली बात तो ये है कि जहां तक सिक्योरिटी का ताल्लुक है तो सिक्योरिटी तो विद होल्डिंग टैक्स नहीं होगा, क्योंकि वो तो 153 में उसको छूट दी गई है सिक्योरिटी डिपॉजिट को। अब रही बात प्रॉफिट की, अगर प्रॉफिट ऑन डेट है और बैंकिंग सेक्टर और अदरवाइज आ रहा है तो फिर उस पर विद होल्डिंग टैक्स आपको वो प्रॉफिट ऑन डेट का है ना, मेरे ख्याल 28 है, कौन सा है, उसके अंदर जाके इसमें विद होल्डिंग टैक्स जो है वो काटना पड़ जाएगा। पेमेंट वाला 151 में है, ठीक है, और जो रेसिपिएंट होगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, अगर उसकी बिजनेस इनकम ना हुई तो विद होल्डिंग टैक्स इस पे अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि मार्कअप जो है ना बैंकिंग और नॉन बैंकिंग का एग्जेम्प्ट है, अदरवाइज वाला मार्कअप एग्जेम्प्ट नहीं है, विद होल्डिंग टैक्स है। बिल्कुल ठीक है कि वो जब उनको पेमेंट करेंगे तो विद होल्ड करके फिर पेमेंट जी, करेंगे। विद होल्ड करके वो प्रॉफिट ऑन डेट के रेट्स भी अब चेंज हो गए हैं ना, पता लग गया होगा आपको, स्लैब रेट आ गए, सर 50 सर लाख रुपए तक कुछ और है, फिर आगे ऑनवर्ड करते करते 20% तक ये शायद जाता है। बिल्कुल सही है सर। सर उसी पार्टी जो वो पार्टिसिपेंट है उनका सेकंड क्वेश्चन ये है कि जैसा कि मैंने अर्ज किया कि वो एफटीएन होल्डर हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको अमाउंट मिलती है और वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में आ जाती है। अच्छा। तो जो अमाउंट पड़ी होती है उनको उस पे उनको रिटर्न मिलता है और बैंक क्रेडिट कर देता है उनके अकाउंट में। अच्छा, तो बैंक जो है वो 30% जो है ना वो विदहेल्ड कर लेता है। वो इसलिए कि ये नॉन एटीएल में होगा ना। अच्छा, तो एफटीएन वाला एटीएल में जाने के लिए उसको प्रोसेस पार्टिसिपेंट को बता वो दें तो सो अपनी, दैट। जब तक लॉ छूट नहीं देगा, आप एटीएल में अगर नहीं है तो फिर रेट डबल ही होगा, अनलेस एग्जम्पशन ना मिल जाए आपको। तो यहाँ तो पेंशन वाले लोग जो कि एग्जम्प्ट है, या वो लोग जो सिर्फ रिटायर्ड है और वो सिर्फ प्रॉपर्टी की सेल परचेज और प्रॉफिट ऑन डेट से टैक्स से बचने के लिए डबल ना हो जाए, वो रिटर्न ऑल दो लॉ उस पर नहीं रिक्वायर कर रहा, लेकिन वो फाइल कर रहे हैं ताकि प्रॉपर्टी की अगर सेल परचेज हो तो डबल टैक्स से बचा जा सके। सही, तो सर एफटीएन वाला जो है वो अपनी रिटर्न फाइल करे और भैया उसके वो बाद तो आप देखे ना, अगर लॉ में छूट नहीं है तो मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना, मैंने तो एग्जैक्टली फिर सर। टैक्स काट लेना है उसका। बिल्कुल सर, ऐसे ही हो रहा है, बैंक काट रहा है उनका। एक और भी चीज है, मैं आपके नॉलेज पर्पज के लिए, सब पार्टिसिपेंट्स के नॉलेज के लिए शेयर करता चलूं। वैसे सर फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेस सेक्शन 49 में, प्लस उस सर पे विद होल्डिंग टैक्स भी प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगी, लेकिन ये एग्जम्पशन सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी के लिए है, इसमें इनके बनाए हुए इदारों को छूट नहीं है, ये भी मैं बताता चलूं। राइट सर, पॉइंट सर आप क्लियर कर दिए सर आपने, थैंक यू वेरी मच। सर नेक्स्ट हमारे पार्टिसिपेंट हैं मिस्टर अजीम, वो जी आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जी जी, करें जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी सर, मेरा सर एक क्लाइंट है, हमारे कस्टमर वेंडर कह लें आप, वो एक्सेसरी हमें प्रोवाइड करता है, ठीक तो हो वो गया। उसका हम 4.5% टैक्स काटते हैं, लेकिन वो हमें कहता है जी हम है टेक्सटाइल एक्सपोर्टर, वो कहता है जी अच्छा आप हमारा 1% टैक्स काटें। उसने हमें 45A का रेफरेंस भी दिया है। बेसिकली मैं अच्छा वहाँ पे अकाउंट्स मैनेजर हूँ, मेरा जो टैक्स मैनेजर है ना वो मैं भी उसको एग्री कर गया हूँ कि 45A के मुताबिक उसका 1% होना चाहिए, क्योंकि उसमें उसने लिखा है कि जी अगर ये टेक्सटाइल और आर्टिकल्स अगर सब दे रहे हैं ना तो उसको आप 1% ही लगाएं, उसके ऊपर अच्छा, 153 अप्लाई नहीं होगा। ठीक आपका है। सर इसमें क्या ओपिनियन है? पहले आप उस क्लॉज को अच्छी तरह पढ़ ले कि कौन जी किसको सप्लाई करेगा, तो वो रेट 1% होगा, उसको जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर तो आप उसकी प्री कंडीशंस को मेट कर रहे हैं तो फिर तो ठीक जी है, लेकिन एक चीज मैं बताता चलूं आपको, अगर जी कल को जी ये प्रूव हो गया कि आप इस क्लॉज के अंदर नहीं आते, तो डिफरेंस उन्होंने आपसे प्रिंसिप वो 3.5% विद डिफॉल्ट सरचार्ज उन्होंने कलेक्ट करना है आपसे। बिल्कुल सर, वो बड़ा सर हाइपर भी वो होता है, वो कहता है नहीं, कि यार हाइपर की आप बात नहीं होती, हाइपर की जी बात नहीं होती भाई, कानून जो अगर अप्लाई होता है तो उसने जी तो जी अप्लाई होना है, ठीक है। सर, वो हमें ना रेफरेंसेस देता है काफी क्लाइंट्स के कि जी ये भी प्राइवेट लिमिटेड है तो वो मेरे 1% काट रहे हैं, कोई मतलब आप हमारा कैसे करते हैं ये नहीं नहीं, वो। वो ठीक है, मैं ये नहीं कह हाँ रहा कि आप ना काटे 1%, लेकिन जी मसला जी ये है कि बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे होगा कि कल को अगर टैक्सेशन ऑफिसर आपसे ये पूछता है कि आपने क्यों 1% काटा है, तो क्या जी आप जी उसको जस्टिफाई कर लेंगे? अगर तो आप जस्टिफाई कर लेते हैं फिर तो ठीक है, सर आपकी सर इसमें उसमें वो तो क्या राय फिर आपने? मुझे 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 देखना पड़ेगा ना, वो क्लॉज फिर एग्जैक्टली मुझे दोबारा पढ़ना पड़ेगा और आपके जी केस को उस कॉन्टेक्स्ट में चेक करना पड़ेगा, फिर बात हो सकती है। चलें सर, मैं आपको अगर फेसबुक पे इनबॉक्स में करूं अपना हाँ या जी, बाद रिमाइंड में कर लीजिएगा, इसके बाद कर जी लीजिएगा, उसको देख लेंगे। ठीक है सर, थैंक सर
नेक्स्ट हमारे पार्टिसिपेंट हैं नासिर बशीर, वो जी, जी। वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर। जी पूछे पूछे। जी नासिर बशीर। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी नासिर साहब। सर मैंने ये पूछना था कि सीपीआर विद होल्डिंग का बनाते हुए अगर एडजस्टेबल में मल्टीपल पार्टीज हैं बट उसमें एक या दो पार्टी फाइनल में जो है वो भी इंक्लूड हो जाएं, तो क्या सीपीआर का कोई इशू है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं, आप बाद में इसकी करेक्शन भी हो सकती है और लिख के आप दे भी सकते हैं। देखें, अगर एक गलती से एक बंदे ने कोई चीज गलत कर दी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसका लिजिटिमेट राइट खत्म हो गया। ठीक है। जी जी। नहीं, मैं कंफर्म ये करना था कि अगर उसमें चार पार्टीज एडजस्टेबल वाली हैं जो मतलब कंपनी है, जी, एक जी। उसमें फाइनल वाली है, तो वो क्या जो उसका एक तो आपने बोल दिया कि उसका राइट खत्म नहीं होगा, वो उसको अपने हिसाब से देख लेगा, क्या बीइंग विद होल्डिंग एजेंट मेरे ऊपर उसके कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे? देखिए, पैसा जमा हो गया ना, जी हो गया। अगर उसको बहुत ज्यादा मसला हो रहा है तो उससे कोई सीपीआर की करेक्शन करा ले। ठीक है, आप दोनों मिलके जी ठीक है। उसको फर्ज करें आपने, ये भी होता है कि फर्ज करें, अभी एक और प्रॉब्लम भी आपको आएगी, आपने नाम लिखा ए का, एंटीएन लिख दिया बी का, जी बिल्कुल। तब क्या होगा? क्रेडिट उसको मिलता है जिसका एंटीएन होगा। ठीक है। सर अब आप वो तो इसकी सीधा फिर मैं करेक्ट करवा के दूंगा ना आप उसे। करेक्ट करा सकते हैं, आप भी करा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इतना कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, पैसा चला गया उनके पास। सिर्फ अगर उसका जी। ब्रेकअप गलत हुआ है, उससे हम्म। नेचर नहीं चेंज हो जाएगी। अगर वो नहीं मानते, इसको उस तरह एक्सेप्ट नहीं करते, तो उन्हें इसकी करेक्शन करा लेते हैं। जी जी ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। जी। सर नेक्स्ट मिस्टर सुहेल आबिद हैं, उनका माइक जो है वो यूज़ नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने जी। जो हमें टेक्स्ट किया है। सर क्वेश्चन तो मैं जो समझ पा रहा हूँ इररेलेवेंट है, लेकिन आपकी मौजूदगी का सारे फ़ायदा उठाते हैं और जी। आपकी टैक्सेशन के फील्ड में बड़ी खिदमत है। तो ये मैं क्वेश्चन सर जी, आपको करें पुट करें, करता आप हूँ। करें। सर ये है, वो कह रहे हैं कि विदहोल्डिंग टैक्स अगेंस्ट सर्विस प्रोवाइडर पेमेंट इन पंजाब जी। विल बी डिपॉजिटेड टू पीआरए। तो ये तो मुझे लग रहा है कि सिंपल नहीं ही नहीं, है वो सर। दो चीजें मुख्त, देखें दो चीजें, देखें सर उनको वो शायद ना इसको मिक्स कर रहे हैं। देखें, जो इनकम टैक्स है ना, वो पीआरए के पास तो है नहीं, वो तो है फेडरल गवर्नमेंट के पास है। ठीक है। अब वो शायद इसको मिक्स कर रहे हैं, सर्विसेज का जो सेल टैक्स है उसके साथ मिक्स कर रहे हैं। जी इनकम सर। टैक्स तो जाएगा एफबीआर के पास, चाहे आप पाकिस्तान में कहीं भी काटे, नंबर 1। ठीक है, जो एफबीआर का एफबीआर के पास जाएगा। रही बात सूबे की, तो वो अगर वो सेल टैक्स की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जिस सूबे में सर्विसेज रेंडर की गई हैं, वो टैक्स ऑब्वियसली उसी सूबे को जाएगा। ये दो कॉन्टेक्स्ट में इनको इस तरह जवाब जाएगा। दोनों साइडें हम कवर कर देते हैं, इनकम टैक्स भी और सर्विसेज पे जो सेल टैक्स है वो भी कवर कर देते हैं। अच्छा, तो सर सेकंड वो ये पूछ रहे हैं कि जो पीआरए की विदहोल्डिंग स्टेटमेंट है सबमिशन की, वो अगर उनके साथ बता दें कि उनकी सबमिशन की डेट्स क्या है, क्या वो एफबीआर वाली डेट्स हैं? वो रिटर्न और के साथ ही होती है जी, अलग से नहीं होती। वो जो रिटर्न अंदर है ना, उसके अंदर ही उन्होंने उसके अंदर विद होल्डिंग जहां होगा, वो भी अगर जो है उसके साथ ही जाता है, वो जो जमा होता है टैक्स। राइट सर, बिल्कुल सही है सर। तो आपकी सर बुक के लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ईमेल आ रही हैं, तो वो यू तो आर आप मुझे एक काम करें ना, ईमेल नोट करके ना, वो जी सारे जी ईमेल मुझे भेज दें, मैं इकट्ठा ही सर। उनको जो है ना बुक उनको भेज दूंगा। कोई और सवाल है तो देख लें। हाँ जी, पार्टिसिपेंट अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो सर इज अवेलेबल फॉर आंसर, तो वो पूछ सकता है जी, वरना अपने ईमेल दे दे मुझे, ताकि मैं किताबें जो है ना और वो वीडियोस वगैरह जो भी हैं वो सबको सेंड कर दूं। ठीक है सर, बिल्कुल सही है। और ये किताब बिल्कुल फ्री है, ऑनवर्ड भी। ठीक है। बिल्कुल। ये नईम साहब सर अगेन है, आई थिंक ही इज सेम पार्टिसिपेंट मिस्टर नईम, उनका एक कोई जी जी दोबारा जी जी हैंड रेज किया है, जी तो वही जी। सर सर सॉरी, मैं दोबारा इंटरप्ट कर रहा हूँ। अभी एक ना पार्टिसिपेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर एक मतलब वीक में डिफरेंट टैक्स पेयर हैं, जिसमें कुछ जो है ना वो मैन्युफैक्चरर है, यानी कि उनका टैक्स एडजस्टेबल है और कुछ का जो है ना फाइनल है, तो जी उसके लिए इंस्टेड कि उनको बाद में करेक्शन की तरफ जाना पड़े, उनको जो एडजस्टेबल पार्टीज है उनको सेपरेट कर लें, और जी एफबीआर ने उसकी टेम्पलेट दिया हुआ है,
उसमें सेपरेट कर लें और फाइनल को सेपरेट कर लें, उनको अलग-अलग जो है ना उनका टैक्स डिपॉजिट करवा दें, तो उनको बाद में जो है ना वो सीपीआर कलेक्शन की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं तो कोई इशू क्या नहीं है सर जी। ऐसा प्रोसीजर है सर? जी बिल्कुल, आप वैसे भी कर सकते हो, अगर आप इकट्ठा भी कर दें तो कोई मसला नहीं है। जो एडजस्टेबल है वो एडजस्टेबल में कर दें, जो एफटीआर वाला एफटीआर में कर दें। उसमें जी उसमें तो ये है कि अगर बहुत सारी पार्टीज है तो फिर हर उनका जो है ना अलग से उनको अप्लाई करना पड़ेगा, तो इस तरह ये होगा कि उनको बाद में जो है ना कलेक्शन की तरफ जाना नहीं पड़ेगा और एफटीआर का जो है ना रिस्पॉन्ड वगैरह को 1 महीने तो वो बाद तो आप अगर एक चलान में भी कर दें, उससे वो मेरे ख्याल में नहीं, जो है बच अगर जाएंगे। आप 2 चलान बनाने की बजाय एक में भी कर दें, ब्रेकअप सही बना दें ना, बात खत्म करें ना। आप 2 में क्यों जा रहे हैं, आप एक में ही कर दें, लेकिन आप ब्रेकअप तो सही बनाए ना, जो एडजस्टेबल है उसको एडजस्टेबल करें, कोई मसला नहीं है। जी ठीक है सर, हमारे कन्वीनियर पिफा लाहौर ब्रांच कमेटी इब्ने अब्बास वो भी हैंड रेज कर रहे हैं फॉर आस्किंग सम क्वेश्चन। जी कोई मसला नहीं, जब तक आपके पूरे पार्टिसिपेंट सेटिस्फाइड नहीं होंगे मैं इसको डिस्कनेक्ट नहीं करने वाला। सर इब्ने अब्बास साहब प्लीज इट्स ओवर टू यू फॉर क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम नदीम भट्ट साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठा रहे हैं तो सवाल एक विदहोल्डिंग टैक्स सर सवाल एक विदहोल्डिंग तो इतना रेलिवेंट नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर आपने 2019 की रिटर्न जमा करवाई है, उसके अंदर आपका रिफंड पड़ा है, तो क्या वो रिफंड आप अगले साल के अपने एम्प्लॉयर को दे के अपने विदहोल्डिंग टैक्स में एडजस्ट करवा सकते हैं? नहीं जी, ऐसी फैसिलिटी नहीं है। देखें, लॉ ने क्या कहा है 149 सेक्शन में कि ड्यूरिंग दी टैक्स ईयर अगर आपका ज्यादा या कम कटेगा वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। जो आपका वैसे ज्यादा कट गया है पिछले सालों में वो आप रिफंड मांगेंगे या एडजस्टमेंट करेंगे अपनी रिटर्न के अंदर, एम्प्लॉयर के साथ नहीं कर सकते आप। जी सर, ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह। जी जनाब, कोई और क्वेश्चन हो जी? जी एनी अदर पार्टिसिपेंट? जी सर आई थिंक ऑल आर सेटिस्फाइड एंड वेरी हैप्पी। जिस तरह आपने माशाल्लाह हमेशा से जिस तरह आपने समझाया हमें, तो अंडरस्टैंडिंग जो आपने दी हमारी, थैंक यू वेरी मच सर। और जो फॉर्मल क्लोजिंग रिमार्क्स हैं उनके लिए मैं ओवर करता हूं सर हमारे जो कन्वीनियर है पिफा लाहौर ब्रांच कमेटी इब्ने अब्बास साहब को फॉर क्लोजिंग रिमार्क्स। इट्स ओवर टू यू सर इब्ने अब्बास साहब। जी बहुत शुक्रिया। और ऑन बिहाफ ऑफ द पिफा लाहौर ब्रांच कमेटी आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू नदीम भट्ट साहब फॉर हिज वैल्यूएबल टाइम, और जो उन्होंने हमारे लिए साथ नॉलेज यही कोशिश की है कि अपने स्टूडेंट्स और अपने मेंबर्स के लिए इस तरह की सीपीडी एक्टिविटीज़ का इनेकाद करता रहे, जिसका फ़ायदा ना सिर्फ ये होता है कि हम अपनी जॉब्स बेहतर परफॉर्म करते हैं, बल्कि जो हमारा अकाउंटेंसी प्रोफेशन है ये उसके लिए भी एक सदका जारिया है और उनके लिए भी एक सर्विंग है। और हमने ये जो हमारा वेबिनार था, हमने इसको सिर्फ लिमिट नहीं किया कि हम सिर्फ और सिर्फ कहें कि जो हमारे पिफा मेंबर या स्टूडेंट्स हैं वो इसमें आ सकते हैं। हमने इसको ओपन रखा है प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स के लिए। इसका हमारा मेन पर्पस ये था कि नॉलेज शेयरिंग हो जाए, और जो हमारे कोलीग्स हैं, ऑब्वियसली बात है कि जो अकाउंटिंग है इट्स मतलब इफ आई रिजेंबल कि ये मेडिकल से ज़्यादा स्पेशलाइज्ड फील्ड है। जिस तरह मेडिकल के अंदर ईएनटी वाले को ब्रेन का नहीं पता, इसी तरह से हम अकाउंटेंट जब एक फील्ड में घुस जाते हैं तो जो लोग टैक्सेशन में हैं वो टैक्सेशन एक्सपर्ट्स हैं, जो लोग अकाउंटिंग साइड पे या फाइनेंस साइड पे या ऑडिट साइड पे उनका अपने तमाम पार्टिसिपेंट्स का जिन्होंने अपने पर्सनल लाइफ में से टाइम निकाला और आज की एक्टिविटी को काम है। सर जी मैं भी एक चीज बताता चलूं, मैंने ये सेशन जो है ना अपने फेसबुक के पेज पे ना लाइव वो भी मैंने कर दिया, वो भी जा रहा है उधर, आपके पास भी आ रहा है और उनके पास भी जा रहा है। अच्छा सर, मैं एक चीज ऐड कर दूं, इसमें है कि ईमेल्स हमने फॉरवर्ड कर दी है चैट बॉक्स में, इस पे वो ईमेल करेंगे और रिकॉर्डिंग के लिंक्स हम इनको फॉरवर्ड कर देंगे विद जो मटेरियल और स्लाइड्स होंगे। और सेकंड थिंग कि जो हमारा फेसबुक फिफा का पेज है उस पे भी ये जो रिकॉर्डिंग होगी अपलोड ऑलरेडी हो चुकी होगी। ठीक हो गया जनाब, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपका शुक्रिया जनाब, आपने मुझे मौका दिया, थैंक यू सर, यू आर ग्रेट सर, थैंक यू वेरी मच एंड वी विल कंटिन्यू सर, आपसे जो है वो हम रोशनी हासिल करते रहेंगे सर। अल्लाह खैर करे जी, अल्लाह खैर। सर इट्स ओवर सर, थैंक यू वेरी मच। अली साहब, थैंक यू सर, थैंक यू।
थैंक यू।